Some may join. So yesterday I have not took the class. I was on leave. Okay. So last time we have discussed. I'm audible. I'm audible or not? Yes, sir, you are audible. Okay. So last time we have discussed certain evidences, actually not one. We have discussed around 4 or 5 evidence that give us idea that there is a shell kind of a structure within the nucleus also. Means proton and neutron, they follow similar kind of picture as the electron follow in the atom. Means you have shell, that is a boundary kind of thing. Below that you have certain number of proton and certain number of neutron to be filled. Once they are filled, the shell become closed. Means the other proton which you fill or the neutron which you fill, that will go to the next shell, something like this. That means there is a not a uniformity distribution of all the energy levels, so there is non-uniformity. So we have got the evidence and we reach to certain number which is called as magic number, that is 28. Then you have 20, you have 28, you have 50, you have 82, and you have 126. So these are the some of the numbers which actually give the idea of shell or the nucleus. So we require certain mathematical model or quantum mechanical model that will justify that yes, these shell are existing. So for that, yourself, who is this? देखो कौन है? मे बी फर्स्ट टाइम रुपेश. रुपेश तो आता रहता है क्लास में. Okay. So what we have done, we have actually used Schrodinger equation, and in that we need to put the actual potential that will give rise to the shell structure. क्योंकि हमारे पास एक ही टूल है जिससे हम इस शेल स्ट्रक्चर को प्रूव कर सकते हैं और कोई दूसरा टूल नहीं है. So the tool is to solve the Schrodinger equation. So looking at the nucleus, we can discuss certain usual potentials that can be used for the nucleus. So first that was used was infinite deep well. That is something like you have a boundary is very high and depth is very, means roughly it is when you take the energy form that within the well the energy is zero, potential energy is zero, and at the boundary the potential energy is infinite. So that I think we have discussed in the last class, and that picture was something like this one. And that goes to infinity. This boundary is going to infinity, means no nucleon can come out from this particular nucleus. So it is not possible. So what are the possible? You can have two different separate energy levels for neutron and proton because they are independent in the nucleus, and you can have the wave function of these nucleus. So that is different wave function. So they are following certain wave function. This is something like what is the Schrodinger equation says. Okay, they will have a certain wave function and there will be a lambda, and lambda will differ from orbit to orbit, and their energy will also differ. In that case, what we have seen is that azimuthal number is, if it is angular momentum related to angular momentum, this quantum number is 0, then the allowed values of energy quantum number is 1, 2, 3, and so on. For L equal to 1, we also have n equal to 1, 2, 3, and so on. And for L equal to 2, we also have n equal to 1, 2, and 3, and so on. So the picture which come out after this arrangement, that it is 1s, we have 1p, थोड़ा सा gap में रहेगा. Then we have 2d, sorry 1d. Then we have 2s very close to this one.
in electronic system we don't have one p, we don't have one d. ठीक है, ये डिफरेंस है न्यूक्लियस के केस में और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में. आप आर्ग्यू कर सकते हो कि आता कहाँ से. दैट इज व्हेन यू सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल for the nucleus, then you reach to a Bessel's solution, and using Bessel's solution you can discuss that these are the possible values of L and N. And then we have 2s and 1f, and we have 2p, we have 1g very close to it. Again there is a 1f is there, 1g is there. So बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 वाले ही हैं. Then you have 2d and something else. I'm not writing that because वहां तक हमारा मैजिक नंबर नहीं आएगा. So this will obviously accommodate 2 s orbit है, तो s का spectral notation की value से we can find how many nucleon you can put in the 1s. That is 2. So 2 is the maximum filling in this case. P will have 6, so maximum filling is 6. D will have 10. This will have again 2. This will have 14, and this will have again 6, and this will have 18. So something like this. So we can see the gaps. This gap is big, and that we will call it as a shell. These are very close to each other, so this is a big gap. So this is another shell. This is another shell. If you calculate it, if you solve the equation, then you will get what is the value of these. Maybe something like 1 electron volt or 0.5 electron volt or 2 electron volt, something within mega, sorry, not electron volt, mega electron volt. तो ये वैल्यू एनर्जी लेवल से ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू है. So if I talk ki how many shells are there which we have found using this particular potential function and solving the Schrodinger equation. So the first shell will be closing with 2 nucleon, either 2 proton and 2 neutron. दोनों के लिए individual चलेगा. ठीक है, दोनों के लिए ये जो configuration लिखा है हमने, that will followed by neutron also, and that will followed by the proton also. And when you fill the 8 means when you fill up completely the 2 shells, that is this one and this one, so you are filling up to 8. So that is the 2 shell has been closed. Then third one will give you a further 20 because 10 plus 2 12, 12 plus 8 20. So 20 is there. Yani third shell be justify हो रहा है हमारे इस particular potential function से. But this one is not justified. This is not a magic number. We should get 28, but we have not got 28. It is 34. It means this potential is somewhere, what we have used is somewhere wrong. Okay, so then they go for another potential which is also can be used because reason है, दोनों का reason है. देखो इसका इस पर अगर कोई पूछता है कि ये potential भाई हम use ही क्यों कर रहे हैं, अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, still why we are focusing on these 2 potential. Another potential is the harmonic potential. So why we are focusing? Why we use this potential? Can you justify? If I ask you, so can you justify? This is a harmonic potential, and you have levels, and in that level you have. हाँ, क्यों हम यूज कर रहे हैं ऐसा, ये पोटेंशियल हमने क्यों अप्लाई क्यों किया? अगर लोगों ने अप्लाई भी किया पहले, तो why they have applied this potential to nucleus? Is there any experimental evidence कि इस तरह का कुछ होता है कि पोटेंशियल हम अप्लाई कर सकते हैं? And if they shift to harmonic potential, then also why they have shifted to this kind of potential? There's something like a center potential. Everything is towards the center. Can you justify this thing? हो सकता है ये आपसे थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि दोनों पोटेंशियल अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं? क्या कोई हमें एविडेंस ऐसा दिखता है जिससे हम ये दोनों पोटेंशियल को फिट कर सकते हैं, या नहीं ऐसे ही बस मन कर रहा था इसलिए यूज कर लिया? हाँ, बताओ. If you able to justify कि why we are able to use these kind of potential, कोई और क्यों नहीं हमने यूज किया? हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर वाला है, वो भी यूज कर सकते हैं. और भी कुछ पोटेंशियल्स होते हैं. Justify first, try to justify, otherwise it is useless कि हम कर क्या रहे हैं. कोई ऐसा एविडेंस है that why we are using these kind of potentials?
Yes, no. क्या सिमेट्रिक पोटेंशियल? सिमेट्रिसिटी तो है दोनों में ही है. इवन कोई और पोटेंशियल भी यूज करेंगे तो दैट वुड बी असिमेट्रिक, बट हियर इवन बैरियर पोटेंशियल इज आल्सो सिमेट्रिक. I have written the formula, which is actually the outcome of when you solve the harmonic oscillator problem for the nucleus. So this is energy value you will get. तो n एक क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 2n plus l है. L is the azimuthal number and n small n is the principal quantum number. So that is related to capital N. तो ये तो हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं. What it is very difficult to take out the nucleon from the nucleus. You need a mega electron volt energy. And when these things has been discussed at that time, mega electron volt energies was very high value. You have electron volt, you have tens of electrons, you have kilo electrons volt. X-ray tha aapke paas, but X-ray is not capable of removing a nucleon. It can remove an electron, but it cannot ionize a nucleus. Means it cannot remove a nucleon from the nucleus. It means what people have thought ki that nucleons are very well situated within the nucleus. They cannot come out easily. It means they are very well inside a well, and it is not easy to take them out. So that means the boundary is very high. The boundary energy is very high. That potential is very high. So approximately this can be fitted. ऐसा नहीं कि ऐसे ही fit कर दिया. So this can be fitted. Then what the other thing that there was decay process also. A decay process, if you look at the decay process, if you try to see the decay process, then sometime the alpha or even the electron, beta particle, when they come out, there is a chance they can get back into the nucleus also. It is obvious. First go में बाहर नहीं आ जाता है वो. It is not a free run कि आप बाहर गए तो निकल गए. You have to make many attempts. Means something like their central thing is there and it is pulling those entity such as electron or alpha particle. So we have the evidence. We have the evidence that these things are coming at the boundary and they are pulled back at the center. So harmonic potential, spring-like potential could be there. So both the things are justified. It means या तो ये फिट कर रहा होगा न्यूक्लियस को या तो ये फिट कर रहा होगा. तो दोनों में से कोई एक चीज फिट कर रहा होगा न्यूक्लियस को. That is why these things has been used. It is not uselessly and mindlessly they have thought कि चलो मन कर रहा है आज ये नहीं तो ये कर लेते हैं, आज वो नहीं तो वो कर लेते हैं. This is not like that. And we have to justify. ऐसा नहीं कि हम नहीं justify कर पा रहे बस करवाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. We need to justify. अगर कोई पूछता है हमने अगर स्टार्टिंग में हमारा रॉन्ग आया था बट हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल या डीप वेल पोटेंशियल यूज किया, why we have used? We know it is very difficult to bring the nucleon out of the nucleus. Why we have harmonic potential? It is why there is a central potential kind of thing, that is everything is being attracted at the center, because alpha particles come several times at the boundary, beta particle comes several times at the boundary. Just wait. So every time when you have the harmonic means something like pulling, someone is pulling inside. ये हो रहा था. अल्फा पार्टिकल तो करीब करीब 10 to the power of 30 times वो हिट करता है बाउंड्री को. Then there is a one chance that you can go out. So this is also justified and they have solved this. And when they solve this, this is the final equation that they will get for the energy. And if you can see that what are the possible values of n, or the possible values of a small n, that is 1 2 3 small n की value 0 भी possible है harmonic oscillator में. If you know there is a zero potential condition, you remember कहीं आपने में भी सुना हो zero potential और zero लेवल या कुछ ऐसा होता है, zeroth level होता है कुछ harmonic oscillator के केस में, not for other case. Means n equal to 0 is possible in this also. तो हार्मोनिक में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n 0 भी है, that is also possible. Means the possibility is 0 1 2 and so on. For L we know it is 0 1 2 and so on. So capital N could be the possible number क्या हो सकता है, 0 हो सकता है,
इनको ऐड करोगे तो 1 हो सकता है, मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन देख लो, कैपिटल N की वैल्यू 2n plus L है, तो यू कैन मेक दिस all these combination. So these are the possibility. So if you have these possibilities, जैसे आपकी possibility यहाँ पे आई थी N और L के लिए, similar kind of possibility you have N and L here also, and you can picturize what could be the possible shells using this particular potential. So that was 1s. Again we have 1s, that is possible. आपके पास 1 भी है, इसको हम 1 कहेंगे फर्स्ट जो आपका है, और इसको हम s कहेंगे. So that is possible. And then you have the next is 1p, and then you have 2s and 1d. They both are coming at the same level because you can check from here. एक बार जरा check करो कि दोनों की energy value same आएगी या different आएगी. Just check. 2s का meaning क्या है? n की value क्या है? 1 है ना, और l की value क्या है? 0. और इस केस में हमारे पास क्या है? n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी ना, 2 को, अच्छा n की वैल्यू 2 है ना, 2 0 and 1 विल, आई विल कॉल इट एज 2. सो दिस इज 0. यहाँ पे n की वैल्यू, इस केस के लिए n की वैल्यू आपकी 0 है, और d के रिस्पेक्ट में l की वैल्यू आपकी 2 होती है, क्योंकि p में 1 होता है, s में 0 होता है, इसमें 2 होता है. तो जस्ट ऐड दीज टू नंबर इन दिस वे, 2n plus 1 इस केस के लिए, नहीं 2n, सॉरी नॉट 2n, 2n ये वाला अगर केस लेते हो तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी? 2. इस फॉर्मूले को देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी? 2. सो कैपिटल N इज 2 फॉर बोथ द केसेस. तो ये दोनों ऑर्बिट आपके सेम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लेवल की वैल्यू जो है दैट इज n plus 3/2. बाकी सब तो टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ n वेरी हो रहा है. तो n equal to 2 के लिए दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2s and 1d पॉसिबल. And next I will make it as 2p and 1f, 2p and 1f and so on. तो हमें इतना ही जाना है, ज्यादा नहीं जाना है, ऊपर भी लिख सकते हैं. So these are the different shell. अगला shell का नंबर है, let me just write, there are 3 sub shell, 3s, 2d and 1g. You can check for all these things, n will be same. For these two, n will be same. For these two, n is capital N is same, because energy will be of same value. तो s की वैल्यू अगर है तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियन पॉसिबल है, p है तो 6 न्यूक्लियन पॉसिबल है. सेम जो स्पेक्ट्रल नोटेशन है वो वही रहेगा. d और s दोनों हैं तो कितने हो गए? 10 plus 2, मतलब 10 plus 2 that is 12. 12 की पॉसिबिलिटी है ना, ये 2 10 इसमें है, 2 इसमें है. इस केस में क्या होगा? 14 plus 6 20 की पॉसिबिलिटी है. इस केस में क्या होगा? f is 14 plus 10 24 24 plus 2 26 and so on. निकाल सकते हो आप बैठ के कि कितना होगा. Now when the first shell completed, 2 न्यूक्लियन ने फिल किया फर्स्ट शेल को, शेल क्लोजर आपका आ गया 2 न्यूक्लियन के केस के लिए. then you have 8, then you have 20, and then you have 40. Again this is not a magic number, 28 मिस हो रहा है अभी भी. इट मीन्स हम कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं. दोनों पोटेंशियल को जब आप यूज करते हो तो वी आर समवेयर इनकम्प्लीट, वी आर नॉट एग्जैक्टली अप टू द मार्क. आपने बड़े अच्छे से जस्टिफाई किया कि ये पोटेंशियल मैंने क्यों यूज किया, आपने ये भी जस्टिफाई किया व्हाई वी हैव यूज्ड दिस पोटेंशियल, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द आंसर. इट मीन्स not only this potential is active within the nucleus, not only this potential is active, actually the superimposed value of these two is active. Clear? Actually the superimposed, these two values active, है ना. बेसिक आंसर तो यही बनेगा ना. अगर मेरा ये भी नहीं वर्क कर रहा, ये भी नहीं वर्क कर रहा, दोनों वर्क कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सुपरिम्पोज देम. है या नहीं? Yes, sir. ओके. सर एक्सक्यूज मी हाँ बोलो. सर, फर्स्ट वाले में इसकी विड्थ क्या होगी पोटेंशियल वेल की? ये विड्थ न्यूक्लियस
होगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले लो r। सर क्या ये आर न्यूक्लियस के बराबर होगा? हाँ, जो उसका मैटर रेडियस होगा ना उसके बराबर। मैटर रेडियस के बाद तो बंद हो गया, उसके बाद तो सिर्फ आपका कूलम पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ जो हम मिस कर रहे हैं ना, देखो इस पे बड़ा वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाई वी आर मिसिंग समथिंग। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर ऑब्वियस है, अगर हम दूसरा रीजन देखेंगे ना तो आंसर सही नहीं आना चाहिए था। आपने क्या मिस किया यहाँ पे, इस पोटेंशियल में मॉडिफिकेशन है, कूलम बैरियर का मॉडिफिकेशन है जो बाउंड्री के बाद स्टार्ट होता है, तो वो आपने मिस कर दिया यहाँ पे। तो यू हैव नॉट फिटेड द एक्चुअल पोटेंशियल। तो विद इन द न्यूक्लियस, अगर मैं बाउंड्री के बाहर की, अगर मैं न्यूक्लियन यहाँ पे अगर स्टे कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं भी कर रहा हूँ, इफ द न्यूक्लियन इज विद इन द न्यूक्लियस, देन आई नीड टू नो द प्रॉपर्टीज, वो किस एनर्जी लेवल पे दे आर स्टेइंग एट, on which level they are situated, and what is the energy. So we are not discussing this part, that is why we can avoid this one. ये जो पोटेंशियल बैरियर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ना कूलम पोटेंशियल से, वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, फोकस विद इन द न्यूक्लियस फोकस करना है। सो एक सेकेंड, विद इन द न्यूक्लियस, so within the nucleus you are focusing, तो within the nucleus इस कूलम बैरियर का बहुत रोल नहीं है। वो जब आपका न्यूक्लियस की बाउंड्री से बाहर आता है, यानी आपके मैटर रेडियस से बाहर आता है, नॉट चार्ज रेडियस, मैटर रेडियस, व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ द मैटर रेडियस, देन इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। Since here also we are discussing कि कितना तक ये आपका जो बैरियर है ना, कितना डिस्टेंस जाएगा, वो आर तक जाएगा जो आपका न्यूक्लियस का रेडियस है। दिस इज स्फेरिकल सिस्टम एक्चुअली, पूरा एक राउंड है। हमें ये तो क्रॉस सेक्शन व्यू दिख रहा है ना, इट इज एक्चुअली कंप्लीटली अ राउंड। तो जस्ट ये तो सिलेंडर की तरह दिखेगा आपको, ये भी सिलेंडर दिखेगा, बट दैट इज समथिंग लाइक अ कोन। थोड़ा सा नीचे आपका डीप यहाँ पे जाके मिक्सअप हो रहा है, बट ये बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन है, ये भी न्यूक्लियस के लिए मॉडिफाइड वर्जन है। बट अब दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं तो दिस कुड बी द पॉसिबल पोटेंशियल फंक्शन। दिस कुड बी द पॉसिबल पोटेंशियल फंक्शन। आपका ये एज भी आपका थोड़ा सा शार्प से आपका ब्लंड हो गया एज, और ऊपर भी आपके पोटेंशियल ये स्क्वायर वेल आपका एक्सपैंड करता जा रहा है, ये फिक्स नहीं होगा तो इट विल expand like this. This should be the ideal potential function. And yes, this matches well with the matter density and the charge density, if you remember. अगर ध्यान होगा तो हमने एक बनाया था ना ये कर्व, जिसमें हमने इसको रेडियस डिफाइन किया था और इसको थिकनेस डिफाइन किया था। इफ यू रिमेम्बर दिस डिस्टेंस, याद है? यस सर, स्किन थिकनेस वाला। Yes, skin thickness of the nucleus. So this picture, which is actually the density picture with the radius, in the same sense the potential has to behave. So this is a potential function. ये आपका 0 होगा, ये आपका v नॉट होगा, जिसको माइनस v नॉट लेंगे, अगर इसको मैच करते तो ये रफली 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की वैल्यू होगी, या 40 भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। सो दिस इज समथिंग लाइक इन दिस रेंज, एंड फर्मी मॉडल हैज गिवन अस कि हाँ इतने तक का ये वैल्यू होता है, आपका जो डीप वेल है उतना है। लेकिन एजेस आर नॉट शार्प, यहाँ पे हमने शार्प एज ले लिया, यहाँ पे बिल्कुल ही हमने विदाउट एनी शार्पनेस लिया है, तो वी नीड टू लाइक दिस वन, बिकॉज द डेंसिटी वेरीज इन दिस वे, इट मींस वी हैव टू यूज दिस। और एक चीज और पोटेंशियल के लिए रिमेंबर रखना, जैसे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, दैट जब हम पोटेंशियल कह रहे हैं ना, पोटेंशियल, so what is that potential? It is actually average potential of all the nucleon. कोई भी न्यूक्लियन किसी आपके रेडियस में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है एट एन इंस्टेंट, बट वॉट एवर इट पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड, अगर आपके पास 100 न्यूक्लियन है तो आपके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं और दे आर सुपर इम्पोज, तो आपका जो 101th न्यूक्लियन होगा दैट विल फील द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द अदर न्यूक्लियन, बट इन द एवरेज सेंस। तो जब ये पोटेंशियल फंक्शन हम लिख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली एवरेज पोटेंशियल। सारे न्यूक्लियन का अपने पोटेंशियल निकाला इंडिविजुअल का, उसको आपने सुपर इम्पोज कर, दैट इज योर एवरेज काइंड ऑफ थिंग। तो उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, बट हम ये कर सकते हैं कि दिस इज, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसके 50% पे हम
रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज योर आर डिस्टेंस, जो कि वेरी हो सकता है थोड़ा आगे न्यूक्लियस के एक्चुअल रेडियस से भी आगे आप जा सकते हो. दैट इज अलाउड बिकॉज इट इज देयर इज अ स्किन, द डिफ्यूज्ड बाउंड्री इज देयर फॉर द nucleus. Okay, so this is actually called as intermediate potential. This is called as intermediate potential function. This potential function is not very simple in this way, और इसके लिए आप लिख सकते हो माइनस के आर करके ये पोटेंशियल लिख सकते हो. ये आपका इस तरह सेंटर पोटेंशियल ऐसा वेरी करेगा, ये आपका ये पोटेंशियल था. दिस पोटेंशियल वी हैव टू राइट इन द सेम वे एज वी हैव रिटन फॉर द डेंसिटी. So that is 1 plus exp exponential r minus capital R. R capital R is your radius, which you have defined as a 50% when this value is v naught by 2. So that you are defining as a radius, which is not actually a radius. You have a thickness, you have a skin thickness. Boundary is not so sharp. So this particular function we have to use. And using this function, now solve the Schrodinger equation. We know this a value, we know this r value for certain nucleus. So with the radius, we can find the things. And again, we will get the differential equations, and we have to justify the differential equations as per the boundary condition. So not going into detail of what the value of n and l, and what is the function of n and l is going to be there. But what we get the outcome is we get 1s, yes, we get 1p at certain distance, the gap is big. Then we get 1d and 2s. This is something like same this one. Then you have 1g. अच्छा यहाँ पे मैंने शायद मिस किया, ये एफ लिखा था ना, जी मैंने ऊपर कर दिया. हाँ ठीक है, ओके ठीक है. 1 ओके ओके, आई हैव दिस इज 1f. 1f के साथ एक और मिक्सअप हो गया है 2p. ये हमारे पास पहले था नहीं था, दिस वन. ये जो 2p यहाँ शिफ्टेड है ना, वो 2p शिफ्ट होकर के नीचे आ गया जब हमने इस पोटेंशियल को सॉल्व किया. तो मेरे पास 1s आ गया, 1p आ गया, 1d. आपको याद नहीं रखना है एग्जाम के लिए, आपको जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो भी मैं बता दूंगा कि क्या याद रखना है. बट जो आप लास्ट में याद रखोगे उससे पहले की कहानी थोड़ी सी याद होनी चाहिए. मेरा सिर्फ इतना है कि ऐसा ना रहे कि जो आप पढ़ रहे हो ना लास्ट में कि भाई शेल मॉडल का आउटकम ये है, शेल मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन ये है, वो ऐसी हमने याद करना था तो याद कर लिया. बट यू शुड नो द बैकग्राउंड ऑल्सो. बहुत टीचर ये करेंगे डायरेक्ट ही आपको शेल मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद कर लो, न्यूक्लियन को इस हिसाब से आपको फिट करना है. तो आई डोंट वांट टू गो इन दैट वे. यू शुड नो समथिंग प्रीवियस बिफोर राइटिंग दैट कॉन्फ़िगरेशन. उससे पहले कुछ तो है जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम आंसरेबल हो कि हाँ भाई ये चीज थी इसलिए ऐसा है. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग इन डिटेल. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ठीक है, तो इससे मत डरना कि हमें ये सारा याद रखना पड़ेगा सारे फॉर्मूले की. यहाँ पे नंबर 20 था, 24 था, 34 था, यहाँ पे ये था, 40 था, 20 था. हमें याद रखना नहीं, याद नहीं रखना आपको. जो याद रखना है वो फाइनल जो शेल मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रखना है. वो भी ज्यादा नहीं, 50 तक याद रखना है. उतने ही नहीं, मतलब आपको 50 की फीलिंग की आ सकती है एग्जाम में, या 40, 37, 38 समथिंग लाइक दिस. उससे ऊपर नहीं, because no one remember that thing. 1p, and then you have 1d and 2s. So there is a gap, big gap, and we have 1f and 2p. यहाँ पे दोनों अलग थे, यहाँ पे वो मैच होकर के आ गए. ठीक है, वो यहाँ देखोगे 2p और 1f जो मैच हो गए, यानी दोनों के मिला करके कहानी यहाँ पे जनरेट हो रही है. मीन्स somewhere following this one and somewhere following this one, we are getting this one. Okay, so this is again a big gap. Then you have 1 f and उसके बाद है 1g सिंगल है. 1g के बाद फिर से हमारा 3 different subshell and that is 2d, 3s and 1h. So we are not writing that. So this is again we have 2. This one will accommodate 6, this one will accommodate 10 and 2, and this will 14, and how much this 6, and this is 18. So yes, we get 2, we get 8, we get 20, and what could be the next number? This number.
up to this shell, if you close up to this one, so 20 plus 40, 20, so this is 40. Again, this is not the magic number. अब तो हमने वो भी कर लिया कि डेंसिटी जैसे वेरी हो रहा है न्यूक्लियस का, उसी के अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल भी चूज किया, which is called as intermediate potential. The potential function is exactly what the nucleus have. Still we are not getting those things. अब कहाँ गड़, अब तो इससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते, पोटेंशियल में हम कुछ नहीं कर सकते. We cannot do anything in this one. This is the best potential that a nucleus can have. Exactly, this is experimental potential, you can say. If you try to measure this picture, you will get. It means something again we have done wrong, है ना? तो assumptions में दो चीजें important है. First assumption is that choice of potential. जब शेल मॉडल डिस्कस करते हैं ना, तो assumptions होते हैं कि आपको assume क्या करना है. तो choice of potential is important. Choice of potential हमारा क्या था? Yes, let me write in VR form. Minus V naught upon 1 plus exponential R minus R divided by A. So this is what the potential we can choose. We don't have to choose the square well, or we don't have to choose the center potential. We have to choose this potential. This is the first assumption that you have to consider, because that potential fits the nucleus. Now the second assumption, that is also important, and that is important to get the magic number. तो बहुत सालों तक तो लोगों को पता नहीं चला कि हमने सब कुछ कर लिया यार, आंसर नहीं आ रहा है, करें क्या, हम हमारे समझ में नहीं आ रही. So they again saw the electronic picture. In electronic picture, when you see the atom and when you see the electrons, how they behave in the orbit, वहां पे पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पोटेंशियल क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए पोटेंशियल क्या फॉलो करते हो? जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन आपने हाइड्रोजन एटम का सॉल्व किया है, तो वहां क्या पोटेंशियल फॉलो किया है? किसी को नहीं पता? इस तरह का कोई फंक्शन नहीं, बहुत सिंपल फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ऐसा कुछ है, बट बड़ा सिंपल फंक्शन है. क्या फंक्शन है? इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के केस के लिए आप किस तरह का पोटेंशियल यूज करते हो? At Coulombic potential. Potential very simple, minus k q upon या q1 q2 आप वहां पे लिख देते हो, मतलब ze और e स्क्वायर आप लिख देते हो, डिवाइडेड बाय r. That is the potential you are using. Coulomb potential आप यूज करते हो. This is not the this potential. दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है. आंसर भी डिफरेंट आएगा, आंसर डिफरेंट आता है. वहां पे 1s 1d 1f 1p पॉसिबल नहीं होते, यहाँ पे 1s होता है, हमारे पास फिर 2s 2p होते हैं. We don't have 1s 1p or 1d or 1f something like this. Here we have. Okay, this is the potential which we follow for the electronic system. Okay, तो potential तो हमने ठीक ले लिया, सब कुछ कर लिया, बट हम लैग कहाँ कर रहे हैं? तो again the electronic system give you the answer. There is a term which is called as spin orbit coupling. You remember? अगर मे बी कहीं सुना हो तो. नहीं सुना कभी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग? Yes or no? No, Huh? sir. No. Actually, what happens? The potential or the orbit get modified due to interaction between the spin angular momentum and the orbital angular momentum. क्योंकि इक्वेशन अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन देखोगे ना, तो उसमें दो टर्म है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. वही लिखा है उसने, श्रोडिंगर ने और कोई नई चीज नहीं लिखी. दिस इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. पोटेंशियल यू कैन अरेंज, ये पोटेंशियल फंक्शन है, हम वहां लिख सकते हैं. काइनेटिक में दो टर्म होते हैं, वन इज ट्रांसलेशन, वन इज रोटेशनल. बहुत सारे केसेस में सिर्फ ट्रांसलेशन वर्क करता है, और बहुत सारे केसेस में जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर ऑर्बिटिंग समथिंग, सो देयर इज अ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ.
that rotational kinetic energy get modified and that is getting added to the potential function. तो एक आप क्या करते हो, उसमें तीन टर्म होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, आपके पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप ट्रांसलेशन को आप अलग कर देते हो जो कि प्योरली आपका -h/2m डेल्टा स्क्वायर वाला टर्म। बाकी जो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को आप एक टर्म के साथ इंक्लूड कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। जब आपने अगर आपने हाइड्रोजन एटम सॉल्व किया हो तो वहां पे L/L+1 का एक टर्म आता है, आज घर जाके दोबारा देखना, वो जो टर्म है दैट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम वहां नहीं जा रहे, बट यस मींस काइनेटिक एनर्जी गेट मॉडिफाइड if there is an interaction between the angular momentum and the spin angular momentum। अगर इन दोनों के बीच में कोई interaction play होता है, अगर दोनों independent है, if they are independent then there is no contribution to come, but if they are not independent, they have to do the certain interaction, so that will modify your system, energy levels को modify करेगा, and there is no doubt। सो इलेक्ट्रॉनिक केस में भी अगर आप देखोगे तो कुछ इफेक्ट होते हैं जिसको फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। और फाइन स्प्लिटिंग भी शायद आपने ना सुना हो, कई बार हमारे पास कोई लाइट एमिट होती है एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, एंड इफ यू डू फर्दर मोर डिटेल स्टडी यू गेट कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रहा है ये दो डिफरेंट नंबर हैं, एक वेवलेंथ नहीं है, दो वेवलेंथ है। इफ यू रिजॉल्व देम, जैसे आपने सोडियम का में भी सीखा हो कभी कि सोडियम में आपके पास दो लाइटें होती है ना, यू हैव टू लाइट्स इन द सोडियम, जो येलो कलर होती है ना, बहुत ही हार्डली 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक शायद होता है 5 आई डोंट रिमेम्बर 5890 होता है, एक 5896 होता है, इफ आई एग्जैक्टली रिमेम्बर द नंबर। इतने एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है दोनों लैम्डा में, और दूर से देखोगे तो येलो लाइट ही है वो। बट इफ यू गो इन डिटेल, गो ऑन रिजॉल्विंग दैट, you will find two lights are there, two different yellow light is there, two different photon is coming, and there is a very small amount of energy difference. So why this energy difference is coming? अगर एग्जाम्पल के लिए P से S का ट्रांजिशन है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, N को ही तो चेक करना है ना। एनर्जी की वैल्यू N स्क्वायर पे डिपेंड होती है, तो वो तो N स्क्वायर पे डिपेंड करी, तो दोनों में इसमें N की वैल्यू 1 है, इसमें N की वैल्यू 0 है, तो एक बेसिक वैल्यू होगी, इसमें N की वैल्यू 1 है, तो एक सिंपल सा रीजन है। N स्क्वायर पे होता है 1/N पे होता है, सॉरी आई एम राइटिंग 1/N होता है शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, द नंबर इज दिस वन, 1/N स्क्वायर। सो इफ P के लिए N की वैल्यू मेरी 1 है, और सॉरी इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, तो मेरा इन दोनों में तो डिफरेंस होना नहीं चाहिए। So whenever the electron is getting transferred from P to S, I get one lambda only. एक ही h nu को emit करेगा, एक ही photon को emit करेगा। But same transition में means P से N में there is a possibility of two values of photon. Two lambda is possible. Means P has been split into two part. P दो different part में divide हो गया है। But energy level बहुत ज्यादा difference नहीं है, बहुत minute है। And when these are transiting to this particular, we are getting two different photons. That is the reason. तो जब दो फोटोन आने लग गए ना, मतलब फाइन स्प्लिटिंग एग्जिस्ट हुआ, तब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को दोबारा रिविजिट किया, एंड दे हैव आल्सो इंक्लूडेड द स्पिन ऑर्बिट टर्म। स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल भी कहते हैं कई बार। So the second thing that you have to include is the spin orbit potential contribution to this particular potential. यानी आपका जो पोटेंशियल आपने अज्यूम किया था ना, इसमें एक और पोटेंशियल ऐड करो which is concerned with the spin orbit potential, which is spin orbit modification. So they are not independent, so they have to be treated in such a way, and if once we include this with this first assumption, and then again we solve the Schrodinger equation, and do we get the magic number or not? If we get the magic number, so we are on the right track. If we don't get the magic number, so we are again in the wrong track. We need another thing for the nucleus. So let us do in a very brief way that what is this spin orbit coupling term is there. So the new potential means we can write V new
पोटेंशियल में आपको मॉडिफिकेशन होगा। एक तो आपने वी आर जो अपने पोटेंशियल अपने ऊपर लिखा ही था, जो आपका न्यूक्लियस के चार्ज डेंसिटी या मैटर डेंसिटी से मैच कर रहा है, वो पोटेंशियल तो रहेगा ही। प्लस देयर इज अनदर पोटेंशियल व्हिच इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट टर्म, स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल, उसको VSO कहते हैं नॉर्मली। L dot S, this is the factor. L is the your angular momentum, S is the your spin angular momentum. Normally this VSO is minus, negative होता है ये वैल्यू, यहाँ तो हमने प्लस लिखा है लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है, ये वैल्यू जो है दैट इज नेगेटिव. So this we have to remember. Okay, and what we have to find, हम करते क्या है कि हम पोटेंशियल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, उससे हमारी एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है. Means something like this. VSO is a constant, so we need to find this number. यानी this already we know, हमने ऊपर सॉल्व किया था, तो मैं हमारे पास एनर्जी लेवल आपके पास आ चुके हैं. यानी इसको सॉल्व करने पे, यानी इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया, तो यू गॉट द एनर्जी लेवल्स. बट you need to do this also, and this will be whatever the number you get after doing this expectation value of L dot S, that you have to include with every energy level. क्योंकि इसने तो आपको एनर्जी लेवल एक डिफाइन कर दिया कि 1s 2p 2s 2g क्या होने वाले हैं, वो सारे बता दिया आपको. लेकिन क्या किसी एनर्जी लेवल में कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू दिस नंबर? यानी अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो, इफ दिस नंबर इज 0, देन वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग. If this number is non-zero, then we have to add or subtract according to that. यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम इसका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, and then we will discuss की how we are getting the splitting of each energy levels. यहाँ तक क्लियर है? Is it clear till now what we are trying to do? Yes, sir. Yes. Means our aim is to find the expectation value of this one. What we will do, we will not do in a detail. हमें वेव फंक्शन को सॉल्व करके नहीं निकालना है, हमें सिर्फ आइडिया लेना है कि इस टर्म का कंट्रीब्यूशन क्या आता है. अब इसमें और भी चीजें मैं पहले के बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा देता था, दैट इज कम्यूटेशन रिलेशन, बट कम्यूटेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ. क्योंकि वो रीजन है, बट उसको हम छोड़ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम अगर डिटेल में आप पढ़ोगे, मे बी शायद क्वांटम मैकेनिक्स आपका है अभी इस सेमेस्टर में. क्वांटम मैकेनिक्स है आपका इस सेमेस्टर में? Yes, sir. sir. Okay, so I think that quantum mechanics you will learn in 3rd or 4th unit about the angular momentum, which is very important chapter. Means some angular momentum commute with each other and some don't commute. Don't commute का meaning है, एक simple logic से समझते हैं. जैसे example के लिए Lx and Ly, they don't commute. यानी x component of angular momentum and y component of angular moment, they don't commute. They don't commute means लिखने का तरीका ऐसा होता है, means you have to find Lx Ly minus Ly Lx, that is not equal to 0. Means Lx Ly is not equal to Ly and Lx. यानी किसी वेव फंक्शन पे अगर आप पहले Ly से ऑपरेट करवाओ फिर Lx से करो तो आंसर डिफरेंट आएगा, और पहले Ly से करो फिर Lx से करो तो आंसर डिफरेंट आएगा. ठीक है. दिस इज द मीनिंग, दिस इज अ सिंपल वे ऑफ लेमैन अंडरस्टैंडिंग कि आंसर मेरा डिफरेंट आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. इट मींस यू कैन नॉट फाइंड इंडिपेंडेंटली बोथ ऑफ देम. दिस इज द मीनिंग. जैसे एग्जांपल के ये है x px minus px and x, that is also not equal to 0. या py कर लो, किसी भी उससे कर लो, py से कर लो, so they are not equal to 0. यानी x और p, यानी x और p इंडिपेंडेंट नहीं है. x को अगर आप नोट करोगे तो p का नॉलेज आपको होना चाहिए, x को प्रिसाइज करोगे तो p आपका चेंज हो जाएगा, p को प्रिसाइज करोगे तो x आपका चेंज हो जाएगा. इन द सेम सेंस सम एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट, आपके पास बहुत सारे एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट है. आपके पास है Lx Ly Lz Sx Sy Sz Jx Jy Jz, आपके पास है L स्क्वायर, आपके पास है S स्क्वायर, आपके पास है J स्क्वायर. तो इनमें से कुछ आपस में
कंपोनेंट कम्यूट करते हैं, कुछ कंपोनेंट कम्यूट नहीं करते हैं. कम्यूट, those which are commuting, it means you can do the independent measurement. It doesn't matter कि पहले आपने क्या किया बाद में क्या किया. And if they commute means you can do this. If they don't commute, it means आप अगर चाहोगे कि ये निकाल लूं तो आपका वो गड़बड़ हो जाएगा, वो निकालने पे आप प्रिसाइज करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा लॉजिक बस इतने तक ही समझ लेना, और इसको हम आगे अप्लाई जब करेंगे तो उसमें मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, बस एक आइडिया है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, हमें इन तीनों कंपोनेंट को यूज करना है, इसीलिए ये तीनों कंपोनेंट कम्यूट कर जाते हैं. यानी कि वी कैन इंडिपेंडेंटली फाइंड दीज थिंग्स, दे डोंट कम्यूट विथ ईच अदर, मींस दे आर इंडिपेंडेंट, दे डोंट मिक्स अप विथ ईच अदर. छोड़ो ये सारी कहानी तुम्हें समझ में नहीं आएगी. एंगुलर मोमेंटम ध्यान से पढ़ना और फिर उसको यहाँ पे दोबारा वापस लाके अप्लाई करना. जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में 3rd या 4th यूनिट में पढ़ लोगे एंगुलर मोमेंटम, दोबारा यहाँ पे आना, चेक करना कि सर ने क्यों ये जे स्क्वायर ही लिखवाया था, एस स्क्वायर लिखवाया, क्यों नहीं जे एक्स या जे वाई या जे जेड क्यों नहीं करवाया. तो यू विल लर्न अबाउट दैट. सो वॉट एवर, this is what we have to find. So how we will find? We know J is L plus S. This we know very well. चाहे आप वेक्टर के फॉर्म में कर लो या उनके नंबर्स के फॉर्म में, तो क्वांटम नंबर के सेंस में भी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज L plus S. It means J square must be equal to L plus S whole square. That is L square plus S square plus 2L dot S. ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा दोनों को. You can even write L dot S and S dot L. That is also possibility, but both the number is same. You don't get a different number, so you write 2L dot S. Our aim is to find L dot S. So L dot S is J square minus L square minus S square divided by 2. Clear? तो यही है ना, ठीक है. It means expectation value of L dot S will be equal to the expectation value of J square minus expectation value of L square minus expectation value of S square divided by 2. Expectation of J square will be equal to J into J plus 1, J are the quantum numbers, minus L into L plus 1. ये हमने एंगुलर मोमेंटम के पार्ट में किया हुआ है कि क्या फॉर्मूला था J स्क्वायर S स्क्वायर L स्क्वायर का, तो दोबारा नहीं कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी नो. यानी जब आप मेजरमेंट करते हो इसका तो आपको ये नंबर मिलता है. दीज आर द क्वांटम नंबर्स and divided by 2, and you also have the h bar squared. ये आपके पास, आप अगर ध्यान है तो पीछे आके, पीछे में मैंने नोट्स दिए हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में, वहां पे आपको मिल जाएगा. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? तो ये पेज मेरा खत्म हो गया है. अब मैं दूसरे पेज को शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, उस पेज पे हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं. अब ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से मैजिक नंबर एक्चुअली जनरेट हो रहे हैं न्यूक्लियस में. Why these magic numbers are appearing. Potential से तो सॉल्व नहीं हुए, but we need to add the potential functions. Sorry, spin orbit coupling term. So let us try to calculate that. Okay, so again I write the formula for that. Let me share also. शेयर कर दिया ना मैंने आपको, व्यूअर है दूसरी फाइल ब्लैंक वन. Is it visible to you? Yes, sir. Okay, so this is the formula. L dot S is equal to J plus 1 minus L plus 1 minus S plus 1 divided by 2. Okay, now for the nucleon, what we know and how we will use this formula. This is a general formula. किसी भी न्यूक्लियन के लिए अप्लाई कर दो, आप एटम के लिए अप्लाई कर दो, आप किसी एक पार्टिकल के लिए अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करो. दिस इज जनरल फॉर्मूला. तो इसमें कोई अनयूजुअल नहीं, न्यूक्लियस को लेकर के नहीं. अब न्यूक्लियस को लेकर के होगा कि व्हाट वी हैव टू रिमेंबर फॉर द न्यूक्लियस और न्यूक्लियन.
within the nucleus. For any given value of L, अगर आपका कोई given value of L है तो J की दो possible value है. आपके given L के लिए J की दो possible value, that is for nucleon case. क्योंकि S की वैल्यू क्या है, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, दे आर फर्मियंस. इससे ज्यादा और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है. तो जो S क्वांटम नंबर है, यानी स्पिन आपका जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम नंबर है, दैट इज हाफ. तो या तो L में आप ऐड करोगे उसे या सब्ट्रैक्ट करोगे. ये भी मैंने आपको पिक्टोरियली आपको शायद स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको मैंने डायग्राम बना के कोन के फॉर्म में I have shown you. You can add L and S, you can subtract N, and that will give you the value of J. That is total angular momentum. It means the L plus half is possible and L minus half is possible. Clear? तो ये दो possible हमारे पास नंबर है. तो what we will find, we will try to find L dot S for L plus half and L dot S for L minus half. हम इसी वैल्यू को दोनों केसेस के लिए निकाल के देखेंगे. ठीक है, दोनों केसेस के लिए, क्योंकि S की वैल्यू तो फिक्स होगी ना. S की वैल्यू हाफ ही है. L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड सो ऑन. कुछ भी हो सकता है. तो हम हर एक के लिए तो सॉल्व करने नहीं बैठ सकते हैं. हम एक जनरल केस निकालते हैं जिसमें हमारे पास L की कोई भी वैल्यू हो, 0 1 2 3 4 व्हाटएवर, S इज हाफ, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड कि J की दो पॉसिबल वैल्यूज होती है. ये टर्म क्या डिफर करता है इन दोनों केसेस के लिए या नहीं करता है. दिस इज व्हाट आवर एम इज. L प्लस हाफ, और अगर मैं L माइनस हाफ करता हूँ, आंसर मेरा सेम आता है, यानी इस टर्म का कोई यूज नहीं है, दैट इज यूजलेस. यानी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कोई रोल नहीं है. इट मींस orbital angular momentum or spin angular momentum, they can add in any way, they will give the same J if they don't give different answer. This is what I can expect कि भाई आपका एंगुलर मोमेंटम ये रहा, S आपका ये रहा, ये ऐसे रहे, ये आपका ऐसे रहे, आंसर सेम ही आता है. J का वैल्यू तो कोई मतलब नहीं है. फिर तो इन दोनों के आपके एडिशन का कोई रोल नहीं रहेगा ना, कि क्या कोई डिफरेंस है. अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा. एक सेकेंड बेटा. तो इनकी कपलिंग का कोई रोल नहीं रह गया ना. दे आर बिहेविंग इन इंडिपेंडेंट वे. क्लियर? आर यू गेटिंग द पॉइंट कि अगर L और S को कैसे भी ऐड कर लो, J की वैल्यू सेम आएगी. और ये मेरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू है. L डॉट S में अगर कोई डिफरेंस नहीं आता तो इट मींस दे आर नॉट कपल्ड, दे आर बिहेविंग इंडिपेंडेंटली. और दोनों नंबर को हमें इसी तरीके से ऐड करना, कोई दूसरा वे नहीं है. इफ यू आर गेटिंग द सेम J वैल्यू. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पहले ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों के एडिशन से अगर रिजल्ट में डिफर करता है तो दोनों का एडिशन एक ओरिएंटेशन के ऑर्डर में एडिशन करना है. ऐसे हम एडिशन नहीं कर सकते. देयर इज अ वे ऑफ एडिशन. अच्छा चलो, नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले निकाल लेते हैं. लेट अस फाइंड दिस वैल्यू. तो टू फाइंड दिस वैल्यू व्हाट वी कैन डू, J, L और S की वैल्यू जरा फाइंड करो कि क्या आता है. इफ J इज L प्लस हाफ, देन फाइंड द वैल्यू. आपके पास फॉर्मूला है सामने. J की वैल्यू क्या है? L प्लस हाफ है. J की वैल्यू क्या है? L प्लस हाफ है. तो ये वैल्यू क्या है? लेट अस फाइंड. J की वैल्यू में क्या लिखूंगा? L प्लस हाफ. ओके. J plus 1 means L plus half plus 1. Is it clear? फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म क्लियर है? यस सर. माइनस L तो आपने जनरली लिया तो उसको आपने ऐसे ही लिखना है. माइनस S की वैल्यू क्या हमने चूज की है? हाफ. वही हमारे पास पॉसिबिलिटी, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. तो दिस इज हाफ एंड हाफ प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज आल्सो देयर. हम लिख देते हैं यहाँ पे 2.
तो जरा सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आता है ये आप सॉल्व करो एक बार। सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड करो एंड सॉल्व दैट, व्हाट यू गेट। Reached somewhere or still doing? कहीं पे कुछ आंसर आया या अभी भी नहीं आया? आप लोग का मैक्सिमम टाइम नहीं आता है। L इंटू एल, एल स्क्वायर, ये हाफ है, ये नंबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आपका एल स्क्वायर एंड प्लस 3/2 एल प्लस हाफ एल। L/2. L/2 आ रहा है। अच्छा सॉरी, एच बार स्क्वायर भी ऊपर लिखना था ना, यहाँ पे हमने पिछले उसमें लिखा था ना, यहाँ पे भी आएगा एच बार स्क्वायर। अच्छा, प्लस में आ रहा है या माइनस साइन आ रहा है? Someone also need to confirm. I just Plus. okay. So this is 3/4. ये टर्म तो पहला ला गया, minus L square and minus L. Minus this is half and this is 3/2. So this is 3/4. So these two get cancelled. L square get cancelled. And 3/2 and 1/2 will give me 2L. So 2L my okay. L h bar square divided by 2. ये आ रहा है ना? Okay. Let us do for this one. For L minus half, that is J equal to L minus half. So let us do first the same sense, that is L minus half. L minus half plus 1, L minus half plus 1, then minus L, L plus 1, minus S, S is half, and half plus 1, and divided by 2. And H bar square is there. ये value बताओ. If they come out to be same, then there is no meaning of L dot S factor. If they are different, then there is a something which is addition. How we are adding them, that is important. अगर वो सेम ही जे दे देता है तब तो कुछ मतलब ही नहीं है, दोनों जे के लिए सेम एनर्जी लेवल है, तो एनर्जी लेवल इज नॉट गोइंग टू स्प्लिट। अगर स्प्लिटिंग होनी है तो दिस नंबर शुड बी डिफरेंट, दिस नंबर शुड बी नॉन जीरो। So minus का L बच रहा है। माइनस एल नहीं, ध्यान से करो, माइनस एल नहीं होना चाहिए, फिर तो दोनों को ऐड करोगे तो दैट विल बी जीरो, समथिंग लाइक दैट। माइनस एल नहीं है, ध्यान से करो। माइनस आएगा, बट व्हाट इज दैट नंबर इज,
और h पर स्क्वायर भी 2, ये तो रहेगा ही जैसे यहाँ पे था, लेकिन l नहीं होगा, माइनस l नहीं होगा, l something else, it is not only minus l. minus L minus 1. minus L minus 1. ओके, ब्रैकेट में l प्लस 1, मतलब माइनस l मैंने ब्रैकेट माइनस बाहर ले लिया, तो दैट इज माइनस l माइनस 1, और ब्रैकेट में हो गया h पर स्क्वायर. वेरी गुड. सो for j equal to l plus half, this number is different. For j equal to l minus half, the number is different. It means the simple things that we can understand, that energy level is going to shift according to j value. Energy level is going to shift according to j value, because now when you have coupling between L and S, then L and S are not good quantum numbers. Means you cannot easily determine them. They are dependent on each other. एक को निकालना चाहोगे तो दूसरे में गड़बड़ होगा, दूसरे को निकालना चाहोगे दूसरे में गड़बड़ होगा. But you can find the J value which is independent. J इन दोनों को मैटर नहीं करता है. तो J आप अगर निकालना चाहते हो तो उससे L और S में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो दैट इज वाई वी आर फोकसिंग ऑन J, कि हम J को निकालते हैं, यानी जो हमारा P. अब एक बार जरा पहले देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग के लेवल, स्प्लिटिंग कितना डिफरेंस है, यानी J, लेट मी राइट इन दैट वे, L dot S for J plus half and minus L dot S factor for J L plus half and L minus half. इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी दोनों जो आपके L plus half और L minus half में जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी डेल्टा E ड्यू टू J क्या होगा, that is equal to something like this. वो J पे डिपेंड करेगा. So that is equal to how much, you just look at the formula. आपका पहला क्या टर्म था, L h bar by 2 था, यानी L minus L plus 1, that is this is plus h bar divided by 2, so that is 2L plus 1 h bar by 2. यानी आपके जो दो डिफरेंट J जनरेट हो रहे हैं L प्लस हाफ L माइनस हाफ करने से, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस इस तरीके का होगा. दैट इज अ फंक्शन जिसमें बाकी टर्म कांस्टेंट है, ये एक टर्म कांस्टेंट नहीं है, यानी L की वैल्यू 0 होगी तो डिफरेंस कितना होगा, h बार बाय 2, अगर L की वैल्यू 0 होती तो. ऊपर से अगर चेक करोगे तो दोनों नंबर आपके सेम आ जाएंगे. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, L इक्वल टू अगर 0 डालते हो तो दिस इज प्लस, इट इज कमिंग, आई थिंक दिस इज प्लस, और h bar by 2, 2L plus 1. ओके, ये नंबर तो यही आएगा ना, 2L plus 1. ठीक है, कोई नहीं, दिस इज 2L plus 1. ओके, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेक S. अगर S ऑर्बिट है तो S ऑर्बिट के दो पॉसिबल वैल्यू J हो सकते हैं. जस्ट गिव मी द आंसर. J की वैल्यू क्या होगी, L प्लस हाफ एंड L माइनस हाफ. तो क्या दो डिफरेंट नंबर हो सकते हैं? S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, S P D एंड F. S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना. Yes. तो अगर ये 0 है तो 0 प्लस हाफ एंड 0 माइनस हाफ, तो J स्क्वायर की वैल्यू दे आर नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, दे आर गोइंग टू बी द सेम नंबर. यानी आप माइनस हाफ प्लस हाफ दोनों का स्क्वायर करोगे तो विल गेट द सेम पिक्चर. दैट इज नॉट गोइंग टू, तो यानी S इज नॉट गोइंग टू स्प्लिट. स्प्लिटिंग ऑफ S इज नॉट पॉसिबल. स्प्लिटिंग ऑफ P इज पॉसिबल. P में आपका क्या है, J की वैल्यू दो डिफरेंट पॉसिबल है, यानी L की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 प्लस हाफ दैट विल गिव मी 3/2. दूसरा देगा J इक्वल टू 1 माइनस हाफ दैट विल गिव मी हाफ. अब इनको स्क्वायर करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव मी द सेम नंबर.
ठीक है, जे स्क्वायर आपका सेम नहीं आएगा, तो दोनों में डिफरेंट आएगा, ऑब्वियस है। इट मींस पी ऑर्बिट विच यू ऑलरेडी नो कि हम पी ऑर्बिट को लिखने का तरीका होता है कि पी लिखते हैं, लेकिन अब जो आपका स्पिन ऑर्बिट अगर इफेक्टिव होगा तो पी विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट, वन पी suffix with 3/2 and one p suffix with 1/2. ये जो 1/2 आपको बुक में लिखा हुआ मिलता है या 3/2 लिखा हुआ मिला है, ये एक्चुअली j की वैल्यू है. इट इज नॉट l और s, इट इज वैल्यू ऑफ j. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. और आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 1 लिख सकते हो, यहाँ 2 रहेगा तो 2 भी लिख सकते हो, 3 रहेगा तो 3 लिख सकते हो, 4 रहेगा तो 4 लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू. बट p orbit is going to divide into two part and there will be a difference of energy between these two, and that difference is roughly equal to, ये रहा फॉर्मूला आपके पास, 2 l की वैल्यू 1 है तो 2 + 1 3h बार स्क्वायर बाय 2. इस ऑर्डर का डिफरेंस होगा दोनों एनर्जी लेवल के बीच में. बिगर शेल आपका p है बट वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, p 3/2 एंड p 1/2. इसमें आपके पास 6 न्यूक्लियॉन की अकोमोडेशन थी या इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन थी, फर्मियंस की अकोमोडेशन थी. यहाँ पे भी उतना ही है, ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग होने से डिफरेंट होगी. जो आपका 1/2 वाला जे फैक्टर है, इसमें 2 न्यूक्लियॉन की पॉसिबिलिटी है, इसमें आपकी 4 न्यूक्लियॉन की पॉसिबिलिटी. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इसका फॉर्मूला भी है जो आपकी जिसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2j + 1, यानी j की वैल्यू क्या है 3/2 है, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3, 3 + 1 4, आंसर 4 आ गया. नीचे वाला फॉर्मूला देखोगे j की वैल्यू हाफ है तो 2 × हाफ दैट इज 2, सॉरी 1, 1 + 1 2, तो 2 की अकोमोडेशन, यानी 6 न्यूक्लियन अभी भी आप प्लेस कर सकते हो, लेकिन 2 आपके j वैल्यू हाफ के होंगे और 4 आपके j वैल्यू 3/2 के होंगे. दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज नाउ व्हेन यू हैव अ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग टर्म. In the same sense, when you come for the D will also split. One will become, क्या बनेगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूं, j + ½ यानी 2 + ½ कितना होगा, how much this number is 2 + ½ क्या लिखूं, 2 + 5/2 and 2 - ½ is 3/2. You can again find the splitting strength. How much splitting will be? Splitting is this much. Delta E कितना होगा दोनों j के लिए, डिफरेंस क्या होगा 2 × 2, that is the L की वैल्यू 2 है ना, तो 2 × 2 4, यानी 5h बार स्क्वायर बाय 2. 1f will further split into 1f and 1f. यहाँ क्या होगा, f की वैल्यू, L की वैल्यू क्या होगी 3, 3 + ½ कितना होगा 7/2. 2, and this is 5/2. यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 4 और 2 था, यहाँ पे भी निकाल सकते हो, 5 है तो 5/2 × 2 दैट इज 5, 5 + 1 6, 6 न्यूक्लियन यहाँ जाएंगे, 4 न्यूक्लियन यहाँ जाएंगे, अगेन देयर टोटल 10 न्यूक्लियन. यहाँ पे भी क्या होगा 7 + 1 8 and 5 + 1 6, 14 आर पॉसिबल. इसमें भी 14 ही थे, पहले भी 14 ही थे, 14 सभी की एनर्जी लेवल सेम थी. अभी एनर्जी लेवल दो पार्ट में डिवाइड हो गया. One part is having j value 7/2, one part is having j value 3/2, 5/2 sorry. D में क्या हो गया 5/2 and 3, यानी some nucleon have 5/2 number as j value and some nucleon have 3/2 as j number. Spin orbit coupling से पहले, before spin orbit coupling effect, we only have this value, जिसमें आपके पास j की वैल्यू +½ -½ की पॉसिबिलिटी नहीं. अब यहाँ पे आप चाहो तो इसकी वैल्यू की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो कि कितना है. F आपका L की वैल्यू 3 देता है तो 3 को यहाँ पे डालो तो 3 × 2 = 6 + 1 7h बार बाय 2. तो स्प्लिटिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग एज योर ऑर्बिटल स्पेक्ट्रल वैल्यू इंक्रीज, यानी P से D, D से F एंड सो ऑन, यानी G में और होगा, H में और होगा, I में और होगा, एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग.
यानी spin orbit coupling is going to split the energy level. This is what the outcome is. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? या स्टिल अभी भी कुछ ऐसा ना क्लियर हो तो दोबारा मैं समझाऊं? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक लाइन ऐड करते ही आपका पूरा पिक्चर अपसाइड डाउन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब हम दोबारा फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था इसको। ओके, अच्छा मैंने यहाँ से लिखा था। ओके, वो दूसरी फाइल में था। आई हैव रिटन दिस वन, V new which is equal to VR plus VSO L dot S. This one I have written, and side में मैंने लिखा था SO is negative. It is a negative number. It means जो आपने पिक्चर, सिर्फ एग्जांपल में P के लिए ले रहा हूँ, बाकी S D F सबके लिए सेम फॉलो होगा। आपने P के लिए क्या देखा? J plus half going upside means L plus half is going upside and L minus half is going downward. But in the nucleon cases, because spin orbit coupling term is minus, it means it will split in this way. The energy is inverted. यानी पहले फिलिंग आपकी ये लोएस्ट एनर्जी का लेवल होगा, ये अपर एनर्जी का लेवल होगा। Why this splitting is there? Because spin orbit coupling is negative, so this is the order we have to follow. हम पहले हाफ में नहीं फिल करेंगे, पहले 3/2 वाले p ऑर्बिट को फिल करेंगे, उसके बाद हम हाफ वाले p ऑर्बिट में जाएंगे। इसी केस को हम फॉलो करते हुए d के लिए कर सकते हैं। d के आपके क्या दो नंबर थे? एक था आपका क्या था? 1d 5/2 था, और दूसरा 1d 3/2 था। नीचे आपने 3/2 लिखा था, तो अब यहाँ पे 5/2 लिखोगे, यहाँ पे 3/2 लिखोगे। यानी पहले आप 5/2 को फिल करोगे, फिर आप 3/2 को फिल करोगे। ये एनर्जी के फॉर्म में क्यों इन्वर्टेड हो गया है? बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग टर्म विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू। वो इसके साथ इंक्लूड होकर के टोटल एनर्जी को आपके निकाल रहा है। तो टोटल एनर्जी के सेंस में these number we have to follow, we don't have to follow this number. ये तो एक्चुअल है, ये तो जनरल केस है कि अगर मेरा VSO मेरा नेगेटिव नहीं होता, if it could have not been a negative number, then this we have to follow. But for this case it is a negative number, so we have to follow in the inverted way, upside down। जो मैंने कहा था ना कि upside down हो जाएगा पूरा पिक्चर, तो वो upside down हो गया। तो पहले हम इसको फिल करेंगे न्यूक्लियस से, फिर हम इसको फिल करेंगे। ये अपर एनर्जी लेवल का वैल्यू है, ये लोअर एनर्जी लेवल का है। इस केस में भी ये लोअर का हो गया, इस केस में अपर का हो गया, एंड सो ऑन फॉर एवरी अदर स्पेक्ट्रल एल वैल्यू, सारे के लिए वही होगा, फॉलो होगा। तो अब क्या करते हैं कि हम रिविजिट करते हैं अपने जो इंटरमीडिएट पोटेंशियल का जो आपके एनर्जी लेवल्स आए थे ना, उसको दोबारा हम चेक करते हैं। और जो आपने एनर्जी लेवल्स लिखे थे, अब उसमें स्प्लिटिंग को भी इंक्लूड करते हैं, और जब स्प्लिटिंग को इंक्लूड करेंगे देन वी विल सी अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो वो ग्राफ या वो डायग्राम मैं आपका क्रेन से ही शेयर कर रहा हूँ। बनाऊंगा तो बड़ा ही हॉचपॉच हो जाएगा, तो वी विल सी इन द क्रेन ओनली। तो लेट मी जस्ट शेयर द डायग्राम फ्रॉम द क्रेन, दैट हाउ द स्प्लिटिंग एक्चुअली चेंज द लेवल्स, एनर्जी लेवल को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। तो लेट मी जस्ट शेयर दैट फाइल।
Okay, so this was the picture of intermediate potential: 1s, 1p, 1d, 2s, 1f, 2p, 1g, and 2d. And these were the number 2, 8, 20, 40 and 58. तीन तो हमारे पास जनरेट हो रहे हैं मैजिक नंबर, लेकिन नेक्स्ट वन इज 40. वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट. सेम इंटरमीडिएट पोटेंशियल वी विल यूज, बट मॉडिफिकेशन किया हमने. क्या मॉडिफिकेशन किया? उसमें एक इंक्लूड किया स्पिन ऑर्बिट टर्म. दैट स्पिन ऑर्बिट टर्म गिव्स मी अ नॉन जीरो स्प्लिटिंग ऑफ ईच लेवल्स. तो हर एक लेवल को स्प्लिट कर रहा है. एस को स्प्लिट नहीं कर रहा, क्योंकि एस में आपके पास एल की वैल्यू 0 होती है, तो एक हाफ पॉसिबल वैल्यू है, यानी जे इज ऑलवेज इक्वल टू एस, तो यू डोंट हैव एनी स्प्लिटिंग. तो एस विल नॉट स्प्लिट, यानी किसी केस में एस की स्प्लिटिंग नहीं होगी. बट पी, डी, एफ, जी, एन सारे जो नंबर्स होंगे, जितने भी स्पेक्ट्रल वैल्यू हैं, यानी जितने भी एजिमुथल वैल्यू हैं, दे विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट. और वो टू पार्ट्स कैसे डिसाइड होगा? वन पार्ट विल बी L plus half and one part will be L minus half. L plus half will be at lower energy level and L minus half will be at higher energy level. Why? Because spin orbit coefficient is negative. यहां तक ये लाइनें आपको याद रखनी है सर. यहां तक क्लियर हो गया? ये समरी चीज क्लियर होगी? है समरी जो अभी मैंने बोला है, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है. और स्प्लिटिंग भी आपकी, स्ट्रेंथ भी आपकी किस पे डिपेंड करेगी? एजिमुथल नंबर पे, यानी एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी. स्प्लिटिंग विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज यू गो फ्रॉम पी, डी, एफ एंड सो ऑन. तो नाउ सी द डिफरेंस. ये जो 1p है आपका, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. 3/2 नीचे आ गया, 1/2 ऊपर चला गया. नॉर्मल कैलकुलेशन से 3/2 ऊपर आना चाहिए था, 1/2 नीचे होना चाहिए था. बट स्पिन ऑर्बिटल आपका नेगेटिव होता है, तो 3/2 नीचे है एनर्जी के सेंस में, एनर्जी लेवल के सेंस में, और 1/2 ऊपर चला गया. Splitting is very low, but not that much low. But for the nuclear picture, we can treat them as a subcell. यानी उसको हम एक ही शेल को इंक्लूड करके रखेंगे. वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. So we will not have any big difference due to splitting of this P level. Then there is a D level. Next one is the S तो split नहीं होगा, P split हो गया, D भी split होगा. D को चेक करो, देखो D आपके दो पार्ट में split हुए. एक आपका 2s है, वो बीच में आ गया है, और d आपका 3/2 ऊपर चला गया है, और 5/2 इज डाउनस्टेयर. 5/2 नीचे आ गया है, और आपका d 3/2 ऊपर चला गया है. सो दिस 3 डिफरेंट, आपके पास पहले 2 ही लेवल थे, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट लेवल्स हैं. फिलिंग भी आपको उसी तरीके से करनी है, यानी पहले 5/2 वाले में जाएगा, फिर वो 2s में जाएगा, फिर वो 3/2 में जाएगा. Now you come to the 1f, जो आपका नेक्स्ट लेवल है. 1f will split more. P इतना कम स्प्लिट हुआ था, D थोड़ा ज्यादा स्प्लिट हुआ, F आपका ज्यादा स्प्लिट होगा. F की स्प्लिटिंग में नीचे आपका 7/2 वाले नंबर पे आ गया दूसरा, मतलब मींस 7/2 will come at the lower energy level and 5/2 will go at the upper energy level. तो थोड़ा सा ऊपर चला गया. इस 1f के साथ एक 2p भी है, वो भी स्प्लिट होगा, वो भी स्प्लिट हुआ. तो 2p का हायर J वैल्यू 1f 5/2 से नीचे आ गया है. इस केस में वो ऊपर था, तो ये दोनों में मिक्सअप हो गया है. एक इसका हाफ पार्ट P से ऊपर चला गया, इसका हाफ पार्ट P का F से नीचे आ गया. दिस इज व्हाट यू आर एबल टू सी हियर. तो व्हेन यू ड्रॉ दिस पिक्चर and you try to see what are the big differences in the energy between different level. So these are the big difference. And if you look at, first number is 2, next number is 8, which is up to this much filling. Then you have 20. Then due to this F splitting, there comes a number 28. 28 यहाँ पे आपका नंबर फर्स्ट टाइम पिक्चर में आ गया, which is the fourth magic number, which comes into the picture because इसके ऊपर के लेवल बहुत दूर है, इसके नीचे के लेवल बहुत दूर है. तो this is treated as a one single shell.
which is having only one f value, f के भी पूरा नहीं है, f का देखो सिर्फ 7/2 को ही हम एज अ शेल ट्रीट कर रहे हैं, वो f by 5/2 बहुत ऊपर चला गया, उससे नीचे उसका एक p by 3/2 भी है. So this is now a magic number. And then you check कि 4 different, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, G हमारा different shell था आपके intermediate potential के लिए. Now the G has split into 2 parts. One part comes with the this one and one part goes with the other level. So now you get the 50. जो आपका 58 आ रहा था ना, अब वो 50 हो गया. So you are able to get all the magic numbers if you include spin orbit term. ये नंबर्स आपके जनरेट हो गए जब आपने इसकी स्प्लिटिंग की ना, और स्प्लिटिंग के हिसाब से आपने बिग डिफरेंस को जज किया कि भाई ये बड़ा डिफरेंस है, इसको मुझे दूर रखना है, तो दैट इज कॉल्ड एज शेल. So now you can see even in the upper case it is 82. Next number, next is 126, and you will get 184 also, and so on. तो आपके पास सारे मैजिक नंबर्स जनरेट, यहाँ ऊपर देखोगे, यहाँ पे ये देखो, ये रहा this one. This is only intermediate potential. This is intermediate form with spin orbit term. Then only you get the magic numbers. अब आपको ध्यान क्या रखना होता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एटलीस्ट अप टू 50 थोड़ा सा याद करना होता है, क्योंकि एग्जाम में इसको आपको अगर याद होगा ना, तब आप किसी न्यूक्लियस का आप आई वैल्यू विच इज टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप निकाल सकते हो. अदरवाइज किसी न्यूक्लियस का क्या वैल्यू आ रहा है, क्यों आ रहा है, यू वोंट बी एबल टू आंसर. अगर आपने ये याद कर रखा है तो आंसर नहीं आएगा आपका, अगर आपने ये याद कर रखा है तो आपका आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट के इसके पेजेस देखते हैं. लास्ट के पेजेस में he has written all these things, all the properties. तो ये जो नंबर लिखे हुए ना, this one, these numbers, जैसे Na का कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है 23 ले लेते हैं, 3/2 प्लस लिखा हुआ है इसमें. तो why this 3/2 he has written? This is actually the nuclear angular momentum, total angular momentum of the nucleus. And if you don't remember the configuration, you cannot find this value. So we will do certain example कि हम किसी न्यूक्लियस का, अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, जो एक्चुअली मैजिक नंबर जनरेट कर रहा है जो कॉन्फ़िगरेशन, इफ वी रिमेंबर दैट कॉन्फ़िगरेशन, देन वी कैन फाइंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी गिवन न्यूक्लियस. ऑड ए केस के लिए तो बहुत इजी निकालना, इवन केस के लिए तो ऑब्वियस है कि 0 आएगा आंसर, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं. और ऑड केस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू नीड टू समटाइम ऐड देम or sometime you have to subtract them. That is also a possibility. So we will do certain example. पहले हम configuration लिखते हैं, configuration लिखने के बाद देखेंगे कि हम उसको यूज कैसे करते हैं. अब क्लियर है थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो आपको हो सकता है ना क्लियर हो रहा. If we relate all the things, and when you see the picture of his spin orbit term with intermediate potential, now is it clear to you? Yes, sir. ओके. तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और ऑफ बाउ प्रिंसिपल वाला नहीं है. ठीक है, जो ऑफ बाउ फॉलो करते थे ना वो नहीं हम फॉलो करेंगे, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो नाउ हाउ द न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन. तो न्यूक्लियॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहला आपका ऑर्बिट या पहला आपका फर्स्ट शेल जो फिल होगा या सब शेल जो फिल होगा, दैट इज दिस वन. आपको मैंने अगर कोई न्यूक्लियस Able है. बोलो. स्क्रीन की पीडीएफ शो हो रही है. अच्छा, ओके. So the first term that you have to remember, 1s half. Next obviously p वाला है. ठीक है, तो p वाले का पहला टर्म कौन सा होगा, 1p 3/2. हमने याद कर लिया कि 3/2 में पहले लिखना है, हाफ वाला बाद में आएगा.
3/2 पहले लिखोगे, देन नेक्स्ट नंबर इज 1p 1/2, ठीक है। उसके बाद आया था 1d 5/2, देन डी की जो स्प्लिटिंग हुई थी, डी की स्प्लिटिंग में बीच में एस एंटर कर गया था, तो बीच में हमारा एस आएगा 2s हाफ। फिर हमारा आया था 1d 3/2। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो हमारा एक सिंगल आया था 7/2, f 7/2। यहाँ तक हमारा 28 मैजिक नंबर आ जाता है। फिर जो बाकी थे वो चारों ऊपर वाले में ऐड हो गए थे, दैट इज नेक्स्ट नंबर इज p वाला आया था। देखा आपको ध्यान होगा कि f हमारा स्प्लिट ऐसे हुआ था और p इसमें एंटर कर गया था, लाइक दिस वन। ये p वाला था, ये f वाला था, 1f and 2p। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आया था, ये 28 वाला बन रहा था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो नेक्स्ट नंबर इज 2p 3/2 and next number will be 1f 5/2 and next number will be 2p 1/2, ठीक है। ये हमें कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, और इसके आगे भी एक आधा जी वाले आप याद कर सकते हो, बट जस्ट let us focus on only these numbers. And if I ask you कि ऑक्सीजन 17, अगर आपको एग्जाम पूछते हैं, एक सेकेंड वेट करना, चलो पहले कर लेते हैं। ऑक्सीजन 17 क्या होगा 9। इसका मैंने बोला आपको कि आप इसका वो निकालो जे वैल्यू, यानी जे एक्चुअली मैं आई पूछ रहा हूँ, आप न्यूक्लियस का आई निकालो। आई इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, एंड ऑब्वियसली व्हाट वी हैव सेड अर्लियर कि जो आपका न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपके वैलेंस न्यूक्लियन का ही आपका एंगुलर मोमेंटम आपके न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव सेड कि जो वैलेंस न्यूक्लियन होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी एंगुलर मोमेंटम को लेकर के, या जे की वैल्यू या एल की वैल्यू एस की वैल्यू, दैट विल बी द न्यूक्लियस आल्सो। ओके, सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट कि इसका होगा क्या। अभी हम क्रेन में चेक नहीं कर रहे हैं, पहले हम खुद बना के देखेंगे, फिर क्रेन में चेक करेंगे क्या आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो आपको जब लिखने के लिए आता है ना कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द particular nucleus, then what you have to write, you have to write individually for the proton and individually for the neutron. तो आप क्या करोगे, प्रोटॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और न्यूट्रॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ऐसा मत छोड़ देना कि इसमें हमारा, चलो ये हमारा ऑर्डर है तो इसी का मैं लिख देता हूँ, नहीं, एग्जाम में आप दोनों का लिखोगे। तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग। पहले हम प्रोटॉन का लिखते हैं, प्रोटॉन हमारे 8 हैं, तो लेट अस स्टार्ट फिलिंग। 1s2 आ गए इसमें, नेक्स्ट इज 1p 3/2, इसमें कितने आएंगे 4, 6 कंप्लीट हो गए। देन वी विल राइट 1p 1/2 एंड वी विल राइट 2, तो हमारे टोटल 8 कंप्लीट हो गए। ऑल आर पेयर्ड and nothing we will get any contribution to the nucleus from these protons. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, अब हम न्यूट्रॉन के लिए सेम नंबर लिखेंगे, 2 1p 3/2, 4 1p 1/2, 2, then 1d 5/2 1. This one is your 9th neutron. ये जो 9th न्यूट्रॉन है उसकी आपकी जे की वैल्यू आपने जैसे ही उसको फिल किया ना, यू नो कि जो 9th न्यूट्रॉन है उसका जे वैल्यू है 5/2, यानी न्यूक्लियस का आई वैल्यू होना चाहिए 5/2, दैट्स ऑल। ऑड के लिए ना बहुत सिंपल है, आपने जैसे ही देखा ना जहां पे आपने लिखा, अगर वो आपका वैलेंस न्यूक्लियन इसमें आता, इस वाले और इस शेल में, तो उसका आंसर 3/2 होता। तो लेट अस चेक द क्रेन। क्रेन में बुक से ही चेक कर लेता हूँ और मैं गलत नंबर नहीं बताऊंगा। इफ यू ट्रस्ट मी I will tell you the correct number. Oxygen 17, its I value means total angular momentum of the nucleus is 5/2 and configuration से हमें 5/2 मिल गया। यानी अब आपके पास एक हैंडी टूल हो गया, उस हैंडी टूल से you can easily find the total angular momentum, that is I value of any nucleus,
ऑड के लिए तो बहुत सिंपल है, ऑड के लिए एक ही न्यूक्लियन आपका अनपेयर्ड होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जिस शेल में आएगा, जिस सब शेल में आएगा, उसका जो भी जे वैल्यू होगा वो न्यूक्लियस का जे वैल्यू होगा। इज इट क्लियर? सर एक और एग्जांपल। एक और आप चलो एल ले लेते हैं, एल 27 होता है ना, जो आपका सबसे स्टेबल है। चलो 27 नहीं लेते हैं हम, चलो हाँ पहले 27 ही लेते हैं। अब 27 में हमारे पास एल का होता है 13 यहाँ पे, यानी प्रोटॉन उसके पास 13 है, और बाकी जो लेफ्ट ओवर बच गया, क्या बच गया, वो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो पेयर्ड है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं फिल करना चाहूँ, तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखा था, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ उसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। तो आपके 8 तो यहाँ पे फिल हो ही गए थे। नेक्स्ट देखो कहाँ पे आप जाओगे, 8 के बाद आप जाओगे, नेक्स्ट लिखोगे यहाँ पे प्रोटॉन के केस के लिए 1d 5/2, इसमें कितने आएंगे 6, यानी कितने हो गए आपके पास 14 तो फिलिंग होगी, 14 सॉरी, आप 14 तो हमारे पास है ही नहीं, यानी यहाँ पे कितने डालोगे आप 5। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। है ना, यहाँ 13 है ना, तो आपने 8 तो फिल कर दिए थे, 8 + 5 13, यानी 5 है। 5 किस में आ रहे हैं, डी 5/2 में आ रहे हैं, यानी जो वैलेंस प्रोटॉन है वो 5/2, उसका जे वैल्यू क्या है 5/2। अब अगर मैं इसमें फिल करता हूं, तो आई विल फिल इट लाइक 6, बिकॉज मुझे 14 फिल करने हैं, तो ये पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। इट मींस इसके लिए भी आई की वैल्यू इस न्यूक्लियस के लिए भी 5/2 आनी चाहिए, क्योंकि मेरा वैलेंस 5/2 में है ना। तो इसका भी आंसर 5/2। एक ऑक्सीजन का और चेक कर लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि दोनों आंसर 5/2 आ गए थे, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। ऑक्सीजन 16 का करते हैं, ऑक्सीजन 16 दोनों पेयर्ड है, दोनों में कहीं कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो आंसर विल बी 0। यस, द आंसर इज 0। ऑक्सीजन 17 का हमने कर लिया। ऑक्सीजन 19 का देख लो, 19 का भी आपका यही आएगा। एक हम डिफरेंट नंबर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें दोनों ही आपके ऑड हों, लेट अस से नाइट्रोजन, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, 7 7 एंड 14। अब आप एक बार मुझे बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए। आपका बैलेंस न्यूक्लियन दोनों ही है, इस बार प्रोटॉन भी एक बैलेंस होगा, एक न्यूट्रॉन भी बैलेंस होगा, तो दोनों का मुझे आंसर बताओ कि आई की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए। प्रोटॉन के केस के लिए क्या आएगा आई, अगर प्रोटॉन अगर आपका अनपेड है तो किस में आएगा, 4 + 2 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 1p 1/2 में आएगा ना अनपेड। यस सर। और दूसरे केस में भी 1p 1/2 में ही आएगा, यानी हाफ तो यहाँ से जनरेट हो रहा है और हाफ यहाँ से जनरेट हो रहा है जे का वैल्यू। तो what will happen, they will add up themselves, so I is 1, half plus half 1। तो नाइट्रोजन का I वैल्यू 1 है, because it is one proton is valence, one neutron is valence, and both have half। even you can always say कि भी हम जे हमारा जो, मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, अब मैं दूसरे सेंस में समझा देता हूँ जो जनरलाइज सेंस है। या तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना सबको कि ऑड ए के लिए बहुत सिंपल है निकालना, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एक न्यूक्लियन आपका बैलेंस होगा, या तो प्रोटॉन बैलेंस में रहेगा या तो न्यूट्रॉन होगा, उसका जो भी जे वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर टू यू फॉर ऑड ए? ऑड ए केस के लिए तो क्लियर है ना। यस सर। इवन ए के लिए मींस जिसमें आपके इवन इवन दोनों है, वो भी क्लियर है, सारे पेयर्ड हैं तो 0 होगा आंसर, दैट इज आल्सो क्लियर। ऑड ऑड ए के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है, देखो अगर कोई कलेक्शन ऑफ सिस्टम है, मींस इफ आई हैव अ बॉक्स, in that box if I have say two different j value,
जो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो प्रोटॉन आपका बैलेंस रह जाएगा या तो आपका न्यूट्रॉन रह जाएगा, दोनों ही रह जाएंगे। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वी हैव। प्रोटॉन का अपना जे होगा, उसको हम जे से, लेट मी राइट जेपी, ज्यादा बेटर होगा, इसको जेएन लिखते हैं। जब भी कभी आपके पास जेपी और जेएन जनरेट हो जाते हैं तो जो न्यूक्लियस का आई होगा, दैट वैल्यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम जेपी माइनस जेएन और जेएन माइनस जेपी, देयर इज नो बिग डिफरेंस. It will go from difference of these two up to sum of these two. जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपके पास हाफ हाफ आया था, तो हाफ माइनस हाफ इज 0 एंड हाफ प्लस हाफ इज 1. बट नेचर में सारे नाइट्रोजन के 1 आंसर आते हैं आपके, अगर एंगुलर मोमेंटम मेजर करते हो न्यूक्लियस का, तो दैट विल बी 1, यू वोंट फाइंड 0. तो चांसेस यही होते हैं कि दोनों की पॉसिबिलिटी होती है सबसे लोएस्ट वैल्यू, यानी अगर मान लेते हैं कोई दो न्यूक्लियन आपके बैलेंस बच गए, फॉर एग्जांपल एक बच गया 7/2, एक की वैल्यू आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है 3/2, तो दोनों का डिफरेंस क्या देगा मुझे, एक 7/2 है, एक 3/2 है, तो डिफरेंस क्या आएगा, बिगर को स्मॉलर से डिफरेंस करोगे, बिगर इज 7/2, so 7/2 minus 3/2 will give me 4. कुछ और, हाँ 4/2 4/2 क्या देगा 2, और दोनों को ऐड करते हैं तो क्या देगा 5. 7 plus 3 5 divided by 2 5. So 2, 3, 4 and 5, these are the possible values. क्योंकि ये +1 के डिफरेंस में जाता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहीं भी लिखा होगा J1 minus J2 will go up to J1 plus J2 with a difference of +1 and +1. तो सबसे मिनिमम आपका 2 है, सबसे मैक्सिमम आपका 5 है, इनमें से कुछ भी। अब क्या हो गया, न्यूक्लियस सारे पॉसिबल हैं, बट नेचर में क्या फेवरेबल है मैक्सिमम, हो सकता है J3 के लिए फेवरेबल हो सकता है J4 के लिए फेवरेबल हो, उसके हिसाब से उसकी अबंडेंस चेंज होती जाएगी नेचर में, कि कितने परसेंटेज J5 वाले एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, कितने 4 वाले करते हैं, कितने 3 वाले करते हैं, कितने 2 वाले करते हैं। तो अगर आपके पास दोनों बैलेंस रह गए तो यू कैन इजिली डू दैट, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों पॉसिबल आंसर है। नेचर में दोनों की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, हो सकता है एक अनस्टेबल हो, तो दैट विल डीके टू द अदर स्टेट, दैट विल गो टू द अदर स्टेट। और ऑड ए केस के लिए बहुत ही सिंपल है, कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको ये याद रखना है कि उसके जो सफिक्स में लिखे हुए हैं ये नंबर याद रखना है कि पहले 3/2 है या क्या है, हमेशा पहले बड़ा वाला जे आएगा, फिर आपका स्मॉलर वैल्यू ऑफ जे आएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो नाउ अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है शेल मॉडल से, 2 या 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है अजम्पशंस। तो अजम्पशंस आपके 2 हैं। पहला है आपको एक चॉइस ऑफ पोटेंशियल बेस्ट रखना है, दैट इज इंटरमीडिएट पोटेंशियल व्हिच इज एक्चुअली द बेस्ड ऑन द चार्ज डेंसिटी और मैटर डेंसिटी वेरिएशन ऑफ द न्यूक्लियस, जिसका आप फॉर्मूला लिख दोगे और अब बता दोगे ये पोटेंशियल हमें यूज करना होता है। सेकंड टर्म व्हिच यू अज्यूम, दैट इज स्पिन ऑर्बिट टर्म व्हिच यू कैन नॉट नेगेट, that will give you a non-zero difference, non-zero splitting of the each levels, and you can do the calculation जो हमने calculation अभी किया था ना, जिसमें expectation value of L dot S निकाला था। तो एक आधा एग्जांपल ले लेना और you will show कि P ऐसे split होगा, D ऐसे split होगा, ऐसे split होगा। तो these are the assumptions, इन दोनों assumption पे आपका पूरा shell model based। फिर पहला क्वेश्चन जो आता है, what are the evidences? एविडेंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 4 एविडेंस, 4 से ज्यादा नहीं पूछेंगे एग्जाम में, 8 नंबर का आएगा, हर एक एविडेंस के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो यू हैव टू गिव 4 डिफरेंट एविडेंस, that these are the following evidence by which we come to know that shell model exists in the nucleus. Then you have the application of shell model. उसका एप्लीकेशन क्या है, आपने शेल मॉडल का एविडेंस देखा, उसके assumption से आपने उसको डिड्यूस किया, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन, अब कहाँ पे अप्लाई करते हो शेल मॉडल को। तो द एप्लीकेशन भी आता है, वो भी 4 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, इट इज यूजुअल क्वेश्चन इन द एग्जाम। द फर्स्ट इज वेरी सिंपल, यू कैन फाइंड इजीली द एंगुलर मोमेंट। किसी भी न्यूक्लियस का, फॉर एनी न्यूक्लियस, एनी गिवन न्यूक्लियस, यू कैन इजीली फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। दिस वाज नॉट being answered by the
लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो न्यूक्लियस का, उसमें एंगुलर मोमेंटम का कोई रोल ही नहीं था। इट वाज ओनली कंसर्न विद द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बस, और कुछ नहीं। बट शेल मॉडल में we also come to know angular momentum. Second is the parity also. We can easily find the what is the parity of that nucleus. Parity का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, -1 to the power of L, ये होता है पैरिटी, -1 to the power of L। आपका जो वैलेंस न्यूक्लियन है, यानी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 17 का केस लेते हैं। ऑक्सीजन 17 में हमारा 5/2 आया था आंसर, और 5/2 यहाँ पे आ रहा था, वो सॉरी इसमें आ रहा था न्यूट्रॉन में, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था हमने। वो किस उसमें है, एल की वैल्यू क्या है, वो डी में है ना, वो पी में नहीं है, यहाँ नहीं है, या आगे किसी एफ में नहीं है, वो डी में है। तो डी गिव्स मी 2 वैल्यू फॉर द एल, यानी फॉर ऑक्सीजन 17 पैरिटी विल बी -1 to the power of 2, that is +1। तो पैरिटी क्या होगी, इवन पैरिटी होगी। क्या होगी, इवन पैरिटी होगी। फॉर दिस केस ऑल्सो, एल्युमिनियम के लिए भी आप देखोगे तो डी में ही हमारा आंसर आया था, क्योंकि डी में यहाँ पे अनपेयर्ड आपका न्यूक्लियन रह गया था, यानी प्रोटॉन रह गया था। तो अगेन इट इज इन दिस, सो अगेन द पैरिटी ऑफ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी इवन पैरिटी का ही केस है। एल्युमिनियम भी इवन पैरिटी हो गया, ऑक्सीजन 17 भी इवन पैरिटी हो गया। इसकी पैरिटी को चेक करने का तरीका ये है कि ये कहाँ पे था हमारा, ऑक्सीजन 8 है ना, वो पी में है। इट मीन्स ये हमें देगा -1 की पैरिटी, ये हमें देगा -1 की पैरिटी। क्यों दे रहा है, क्योंकि लास्ट आपका शेल क्या है, इस वाले में। तो -1 could give me +1, this is a possibility and we can check that। तो ऑक्सीजन 17 का हम चेक कर रहे हैं, प्लस पैरिटी है, which is as per our analysis। एल्युमिनियम का आप चेक करते हो 27 का, अगेन इट इज प्लस, तो दैट इज एज पर आवर अजम्पशन, यानी फॉर्मूला हमें यही फॉलो करना है, -1 to the power of L। एल की वैल्यू क्या है, किसी भी जिसमें बैलेंस आपका रह गया, वो आपकी एल की वैल्यू यूज करनी है। और ऑक्सीजन 18, सॉरी ऑक्सीजन 16 का again it is plus, तो -1 will give me पैरिटी, मल्टीप्लाई होते हैं और एंगुलर मोमेंटम ऐड होते हैं। पैरिटी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 2 वैलेंस न्यूक्लियन बचे हैं, यानी एक प्रोटॉन अगर बैलेंस है, एक न्यूट्रॉन बैलेंस है, दोनों की इंडिविजुअल पैरिटी जो भी आती है आपकी, उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज द फाइनल पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस। सो दैट इज ऑलवेज, मैंने कोई नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, नाइट्रोजन 14 की पैरिटी है प्लस। व्हाई इट इज प्लस, वेरी सिंपल, आपका पी ऑर्बिट में आपका लास्ट वाला वैलेंस न्यूक्लियन है, दोनों पी में, दोनों की इंडिविजुअल पैरिटी माइनस है, बिकॉज -1 to the power of L, L की वैल्यू पी के लिए 1 होती है, तो -1 आएगा। तो दोनों के लिए -1 है, -1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, +1 आ जाएगा। थोड़ा फास्ट में गया पैरिटी में, बट वी विल यूज द पैरिटी केसेस इन द अल्फा, बीटा एंड गामा डी के। गामा में तो नहीं करेंगे, बट अल्फा बीटा में करेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है, आपको एंगुलर मोमेंटम ये बता देता है, इट गिव्स यू द पिक्चर ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द न्यूक्लियस, इट गिव यू द पिक्चर ऑफ पैरिटी ऑफ द न्यूक्लियस, it also give you the picture of quadrupole moment accurately, not exactly, but accurately, very close to the experimental value. So it can give you the prediction of quadrupole moment for nucleus। तो शेल मॉडल का एक ये भी आउटकम है। दूसरा शेल मॉडल का एक और आउटकम क्या है, इट कैन गिव यू one more thing, that is dipole moment, magnetic dipole moment। it can also give you the picture, but magnetic dipole moment का picture क्यों ये clearly देता है, because magnetic dipole moment is related to the angular momentum, so it give you the better picture of magnetic dipole moment, electric quadrupole moment, spin means total spin of the nucleus, that is total angular momentum of the nucleus, and parity of the nucleus। ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली, और इवन वन ऑफ द बेसिक आउटकम इज इट जस्ट गिव द very good prediction of the magic number। all the magic number are regenerated in this shell model, so that is also the triumph of the shell model। तो यहाँ पे हम shell model को finish करते हैं। इस पे और जो डिटेल क्वेश्चंस हैं that we will discuss in tutorial।
वहां पे मैंने पहले ही आपको शेयर किया था कुछ शीट जिसमें ऑक्सीजन का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोला था, बट वहां पे एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, तो आई विल चेंज द क्वेश्चन देन आई विल शेयर इट अगेन, ठीक है। तो वहां पे हम चेंज कर लेंगे। अब जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट वन इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। थोड़ा सा है, बहुत डिटेल में नहीं, वैसे आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। अगर आप सिलेबस चेक करोगे ना, तो सिलेबस में से कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस को रिमूव कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिमूव्ड, मतलब उन्होंने यूनिट वाइज जो लास्ट में लिखा रहता है ना उसको रिमूव कर दिया। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मतलब किसी यूनिट में हो सकता है अच्छा लगे कि आपने न्यूटन यूनिट में जितनी भी चीजें लिखी थी उसमें लास्ट वाला जो दिख रहा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसको रिमूव करने से अगर हमारे पास न्यूक्लियस के रिलेशन में कोई इंपॉर्टेंट चीज चली गई है तो फिर तो कोई यूज नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने का। तो विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस पर क्वेश्चन हमेशा, इवन रिमूव भी कर दिया फिर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप देखोगे पिछले साल के अगर मैं शेयर करूंगा ना क्वेश्चन पेपर, तो टॉपिक तो हटा दिया है, but what is the nature of nuclear forces? Give 4 different characteristic of nuclear forces. So question is there because that is one of the basic thing. So that we will discuss on Saturday. What are the nuclear forces and their properties and exchange and how the nuclear forces work. जो attractive force है ना work कैसे करता है, कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्यों अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट करता है, why they don't repel each other and how they are functioning. And from next Monday we will start with the radioactivity. तो आज हम एंड करें। ओके सर। है ना, वैसे तो एंड आप काफी पहले से करना चाहते होगे, बट वी हैव डन 2 आवर्स, तो नाउ वी कैन एंड। तो शेल मॉडल में भी क्लियर हो गया हो, आई होप सो। शेल मॉडल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोबारा। एंड यू हैव टू रिमेम्बर द कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स ऑल। एंड वन मोर थिंग, जस्ट एक मिनट में लूंगा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। I will again share that picture of the shell model. Just I'm sharing you. If someone get the idea, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं और मैंने डिस्कस नहीं किया, बट वो कोई डिस्कशन का पार्ट है नहीं, बट स्टिल आई वांट टू गिव यू आइडिया कि इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से सोच सकते हो। दिस वन, दिस द पिक्चर। ओके, so this was the shell model. If you look at this part, this one, this gap is very big. This is not a small gap. अगर आप कंपेयर करोगे ना इस गैप से तो ठीक है, ये भी एक बड़ा गैप है। ये दोनों गैप को अगर कंपेयर करते हो तो दे आर अ बिग गैप। दे आर नॉट, ये जो गैप है इसको कह सकते हो कि दे आर मिक्स्ड अप, दे डोंट हैव बिग एनर्जी डिफरेंस, बट दीज गैप्स आर बिग गैप, दे आर नॉट स्मॉल गैप। एटलीस्ट इन गैप से तो बड़े ही है। ये जो गैप आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, उस गैप, ये एनर्जी के सेंस में ही गैप बने हुए हैं, दे आर एक्चुअल विथ यूनिट्स आल्सो। So this gap is big one. It means this gap can be treated as a different shell. यानी मैजिक नंबर 6 मिसिंग है। ये प्रोमिनेंट नंबर है, 2, 8, 20, 28, 50 आर प्रोमिनेंट मैजिक नंबर, बट वी आर मिसिंग 6 which is a big gap. We are also missing 14. 8 के बाद 14 आना चाहिए एक मैजिक नंबर, ये रहा 14 लिखा है ना, तो 14 और 6 they are missing from the magic number category. So very recent research has been done that why they are missing, and it has been answered कि ये होना था, this could have been a magic number. 6 भी होता है एक मैजिक नंबर, 14 भी एक मैजिक नंबर होता है, but they are missing due to something, and that has been answered in 2020. और ये सब सारे पिक्चर्स 2000 के 1930-40 के अराउंड सब शुरू हो चुका था। After this much of year they came to know कि 6 should be there, but it is missing due to this reason, and 14 is also missing due to this reason. So this is a question for you. If you are interested you can go through that कि ये क्यों missing है, 6 वाला क्यों नहीं दिखता है न्यूक्लियस में, क्यों नहीं ये हमें prominent दिख रहा है, why we are only able to see 2, 8, 20 and 28 and 50, why we are not seeing the 6, is it faint,
its abundance is less, whatever the reason. So this paper is very recent that this number is missing and that should be there. तो बस एक आइडिया था आपको समझने के लिए था कि हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि शायद कुछ इस पे सोच सकते हैं, but that is not from your syllabus part. So I'm ending the meeting. First stopping the recording so that the recording could be saved.